ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چین نے 50 سال میں اقتصادی معجزہ کر دکھایا۔ چین کی ترقی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ پاکستان کے لیے بھی چینی ماڈل اپنانا چاہتا ہوں۔ چینی ماڈل سے پاکستان دنوں میں ترقی کرے گا۔ بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان میں زراعت، آئی ٹی، معدنیات میں سرمایہ کاری کریں، تحفظ اور ہر ممکن سہولت دیں گے۔ Your great support, Pakistan's economy is now stable. Now we are ready to compete with other countries in this race of economic development. Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. We will not tolerate even a second's delay in taking decisions to facilitate you. You have created a miracle, which is 8th wonder of the world. You are now the second largest economy of the world. I want to borrow this model from you, which will one day soon convert Pakistan into a strong, vibrant economy. وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سی پیک کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیراعظم نے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا شکریہ ادا کیا۔ وفود کے سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیراعظم نے زہرانہ دیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد، نوشیرہ، بٹاگرام، سوات، باجوڑ، محمد، بنیر، دیربالہ میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ غزر، میرپور، آزاد کشمیر، کوٹلی، پھالیا، پسرور اور دیگر شہروں میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.9 کے زلزلے کی گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ مختلف علاقوں میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ کراچی، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد، نوشیرہ، بٹاگرام، سوات، باجوڑ، محمد، بنیر، دیربالہ میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ غزر، میرپور، آزاد کشمیر، کوٹلی، پھالیا میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے ریلوں نے پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، مزید کئی دیہات دریا برد ہوئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی بہہ گئے۔ تباہی مچاتے سیلابی ریلیں صوبے کے آخری مقام پنجنت کی طرف رواں دواں ہیں۔ دوسری بار فصل لئی ہے چاول دی، ہر شے جڑی ساڈی ختم ہو گئی۔ کوئی بھی امدادی سرگرمی نہیں ہے۔ میرے ماموں نہ ہی مجھے ان کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس ٹائم بھی ہم کو خطرہ ہے۔ بھارتی آبی جارحیت اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ بھمبر نالے میں شگاف نے گجرات شہر کو ڈبو دیا۔ شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ مظفر گڑھ میں دوآبہ فلڈ بند کے قریب پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ بند نہ توڑنے سے شہریوں میں افراتفری، نقل مکانی شروع۔ پانی جو ہے نا بہت زیادہ آ رہا ہے، جو ہے نا ہم سب پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی حالت میں یہ سب لوگ ہم جو ہے نا اکٹھے ہیں، کس ٹائم بھی ہم کو خطرہ ہے۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں دریائے ستلج میں سیلابی ریلے نے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ کر دی۔ چارے کا فقدان، خاتون رشتہ داروں کی تلاش میں لاہور سے قصور پہنچ گئی۔ میرے ماموں رہائش پذیر تھے، یہاں پہ ہی ان کا گھر تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں، نہ ہی مجھے ان کے فیملی میں سے کوئی مل رہا ہے، نہ ہی مجھے ان کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ کسی مقامی نے بتایا ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ بھارت سے آنے والے سیلابی ریلوں نے صورتحال مزید خراب کر دی۔ ہیڈ مرالہ، راوی سائفن اور ہیڈ خانکی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ باول نگر میں دریائے ستلج کے ریلوں نے سیم نالا توڑ دیا۔ کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ صفدر آباد میں سیلاب آئے 3 دن گزر گئے۔ نکاس نہ ہونے سے مویشی بیمار، ہزاروں افراد گھروں میں محصور۔ مویشی سارے بھوکے نے تقریباً 4-5 دن تو۔ یہ سارا سیلابی پانی یہ سارا میاں علی ڈوگراں دے وچ آن کھڑا ہے۔ کوئی بھی حکومتی جڑا نمائندہ ساڈے کول کوئی حالی تک نہیں پہنچا ادھر۔ چشتیاں میں پانی کا بہاؤ دریائے کٹاؤ کی شکل اختیار کر گیا۔ حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سڑکیں بہہ گئیں، سینکڑوں دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ چناب کے سیلابی ریلوں نے رنگ پور کو ڈبو دیا۔ کمالیہ میں راوی میں سیلابی پانی نے آبادیاں ڈبو دی۔ پاک پتن میں ستلج کے سیلابی ریلوں نے 40,000 افراد کو بے گھر کر دیا۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلوں کا رخ اب صوبے کے آخری مقام ہیڈ پنجنت کی جانب ہے۔
पिंडी भटिया के नवाई गांव कोट बेला में सलाम मुतासिन बेयार और मददगार खुले आसमान के तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुबशिर खालिक कादरी मुतासिन के साथ मौजूद हैं। मैं पिंडी भटिया के नवाही गांव कोट बेला में मौजूद हूं, जहां पर दरिया चिनाब के सैलाब के पानी की वजह से तबाहकारियां जारी हैं और लोग रात के इस पहर बेयारों मददगार खुले आसमान तले जानवर के चारे वाली खुरली में सोकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारे पास ज़िले हुकूमत की तरफ से ना तो कोई जगह मुख्तस की गई है और ना ही हमें फ्लड रिलीफ कैंप दिया गया है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है कि खुदारा हमें कैंप तो दिए जाएं, जहां पर जब तक हमारे गाँवों से ये पानी खत्म नहीं होता हम अपना जिंदगी गुजार सकें। जी, खानपुर में चाड़ा शरीफ के मुकाम पर दरिया सिंध में 3.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा है। सलाम मुतासिन हुकूमती इमदाद के लिए दुआइयां देते नजर आ रहे हैं। मजीद बताएंगे चाड़ा शरीफ के मुकाम पर मुतासिन के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैयाज बलोच। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चाचड़ा शरीफ दरिया सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है दरिया की जो है 3,50,000 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त मौजूद है और आइंदा इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के अंदर जो है 10 लाख क्यूसेक पानी जो है मजीद यहाँ पे पहुँचना है। और जब जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर ये जो दरिया है इसका किनारा है, यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिली जो है काफी तादाद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बेयारो मददगार जो है खुले आसमान तले अपनी कश्तियों में बैठे हुए हैं। आए हर कोई राशन पानी दे दे गिनते असा को कहीं नहीं देता। असा जिमें भुखे तरसे बैठे हैं, रात भुखे हैं, दी भुखे हैं, बाल रोंदे ने सारी दार दार असा बेहोश असा को कोई कख नहीं मिलता, असा लावारस है, यतीम असा कुछ नहीं मिलता। इनको अब तक ना कोई कैंप दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से और जिले इंतजामिया की जानिब से, ना ही इनको कोई राशन वगैरह दिया गया है। इन्होंने यही अपील की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इनको कैंप्स भी दिए जाएं और इनकी माली मदद के साथ साथ इनको रोजाना की बुनियाद पर इनके बच्चों को दूध पानी और जो है राशन दिया जाए। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चौहंग मुल्तान रोड में सैलाब मुतासिन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुतासिन को खाना और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल मुकम्मल फाल हैं। मरियम नवाज ने कैंप में बच्चों से मुलाकात की और तोहफे तकसीम किए। अपने दरमियान वज़ीर आला को पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मरियम नवाज ने मुतासिन को यकीन दिलाया हुकूमत के बस में जो होगा वो जरूर करेंगी। नाश्ता क्या करके आए? नान चने हलवा और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पंखा लगा हुआ है? सब कुछ लगा है। बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको दे अच्छा ये नुकसान हुआ है। आपको कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। पंजाब से सिंध में सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर मेमन कहते हैं कच्चे से 94,000 से ज्यादा आबादी 3.25 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं मुल्क में आईनी हुकूमत नहीं, बतौर जज कुछ नहीं कर रहे तो हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कराची बार से खिताब में कहा बदकिस्मती से स्कूलों में तारीख पे मुतज़ाहत पढ़ाई जाती है। जिस माशरे में सच्चाई खत्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। मुल्क में आईन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे एलीट कैप्चर है। आज़ादी इजहार आज नहीं, सियासी ख्यालात या कोई तनकीद भी करता है उस पे भी पाबंदी है। जिस माशरे में सच बोलना खत्म हो जाए वो माशरे तबाह हो जाते हैं। अदलिया ने कभी भी अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो कि उसको करना चाहिए था। कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमती ओहदेदार किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। आईन के तहत गवर्नेंस होगी तो वही वे फॉरवर्ड है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देकर नजरसानी की जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को ज़ेली इदारा बना दिया गया है। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। असद कैसर ने कहा उनका इत्तेहाद अदालत के साथ है, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को एक ज़ेली महकमा बनाकर रख दिया गया। आज हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है। ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने।
आईनी बेंच इन पिटिशंस को सुनने का अहल नहीं है। आईनी बेंच जो खुद एक क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की। हम इस मौके पे जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आपसे हम तवक्को रख रहे हैं कि जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। आप तारीख में अपना किरदार अदा कीजिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा नहीं किया। तर्जुमान के पी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम इलेमतार में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हो रही थी और इन अ वे मैं उसको इनफॉर्मल गुफ्तगू कहूँगा। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये पॉइंट रेज किया कि कालाबाग डैम भी एक नेशनल इशू है और उस पर उसका आपने जिक्र नहीं किया। तो इतनी सी बात उन्होंने कर दी। तो उस पर जो है वो सहाफ़ियों ने जो मौजूद थे उन्होंने उसको बस और इशू बना दिया कि जो उन्होंने कालाबाग डैम के बनाने का मुतालबा कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई फॉर्मल मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना किया गया था और ना ही इस वक्त हमारा कोई इस तरह का इरादा है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के सबब ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कौमी असम्बली की 5 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। NH 66 वज़ीराबाद, NH 96 और 104 फैसलाबाद, NE 129 लाहौर और NE 143 साहिवाल का इलेक्शन मौके। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल का इलेक्शन मौके किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है पंजाब में सैलाब के बायस मवासलाती निज़ाम मुतासिर, सड़कें और पुल बह गए, सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल और पोलिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। सादकाबाद में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर डाकुओं का हमला, गाड़ियों पर फायरिंग, 10 शहरियों को अगवा कर लिया। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए, 14 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा थाना भोंग में दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया 40 से ज़ायद डाकुओं के खिलाफ पर्चा काटा गया है। मुकदमे में कच्चे के मुख्तलिफ गैंग शामिल हैं। मुकदमे में इख्फा बराए तावान, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 9 संगीन दिफात शामिल हैं। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ कच्चे में अंधड़ गैंग के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें डाकू हलाक और जख्मी हुए थे। डाकू ने जवाबी वार किया और मोटरवे पर शहरियों को निशाना बनाया। रोकी साडे उत्ते फायरिंग हुई देखिया डाकुआ ने जोड़ा मैनू भी कढ़ लिया, मेरे बेटे ने भी कढ़ लिया, मेरे भाई ने भी कढ़ लिया, सानू थले लै गए। तो असी सर बैठे रहे हैं। आधे घंटे के बाद फिर असी देखा तो वो डाकू है नहीं सी, चले गए। कराची में मोटापे के मरीजों के लिए अमरीकी तर्ज के जदीद इलाज का आगाज कर दिया गया। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में इस जदीद तरीके इलाज का इफ्तिताह किया। ये तरीका इलाज सफ़े अव्वल की अमरीकी कंपनी बोस्टन साइंटिफिक ने तैयार किया है, जो निफ्सतन आरामदेह और मोटापे के मरीजों के लिए नई उम्मीद है। कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने अमरीकी कंपनीज के कायदाना सलाहियतों को सराहा और कहा अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में इलाज का तरीका बेहतर बना रही हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की जानिब से हिजाब रैली का इनेकाद किया गया। हिजाब वॉक में हाथों में पैनफ्लेक्स और पोस्टर्स थामे खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रुहा फातिमा की रिपोर्ट। हिजाब औरत की इज्जत, वकार और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। कराची प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन की जानिब से हिजाब वॉक मुनक्किद की गई। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि हिजाब न सिर्फ मजहबी फरीजा है बल्कि एक मुस्बत समाजी अलामत भी है। हर साल 4 सितंबर को आलमी यौम हिजाब मनाया जाता है। हिजाब है ये, इसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ है और इसके अंदर एक पूरी तहजीब है। खवातीन जो हिजाब करती हैं उसे तंग भी नहीं किया जाता, वो महफूज रहती हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तहफ़्फ़ुज़ उसका बुनियादी हक है। हिजाब वॉक में अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर ने शिरकत की और कराची में दरपेश खवातीन के मसाइल के हल पर बात की। लाखों की तादाद में जो खवातीन बहनें होम बेस्ड इंडस्ट्री में जॉब करती हैं, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उनको जायज़ मुआवजा दिया जाए, उनका हक उनको दिया जाए। शुरा ने हिजाब की अहमियत को उजागर करते हुए हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी थामे रखे। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।